आप हेलो बताओ बताओ सर, बताओ वो प्रकाश। थोड़ा सा जल्दी हो गया सर, मतलब बहुत चीज ओवर द हेड चली गई सर। मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ, बताओ ना मुझे क्या चीज नहीं समझ में आया। मैं तो खुद ही सरप्राइज हूँ कि किसी को कोई डाउट ही नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि मतलब आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। मेरे से तुरंत पूछो, बताओ। नहीं, एक्चुअली सर मैं माइक्रोफोन से बोल रहा था अपने, पर शायद आवाज आप तक पहुंच नहीं पा रही थी। अच्छा अच्छा, माइट बी दिस इज द रीजन। मुझे यार बिल्कुल नहीं सुनाई दिया। प्रकाश बताओ, डाउट बताओ, डाउट बताओ, तुम्हारे बहाने सबका क्लियर हो जाएगा। बताओ। सर वो जैसे मतलब कब कौन सा जैसे स्टार्ट होगा, कब कैसे आपने मतलब 90 डिग्री से कैसे जीरो क्यों चूज किया, मतलब वो सब थोड़ा सा ज्यादा। ओके ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। आपके पास वो स्क्रीनशॉट है सबके पास? और अगर सर आपकी ऑडियो चली गई। आपके पास अगर नाउ माय ऑडियो इज कमिंग प्रकाश? यस सर, अब आ ओके रही है। ओके। सी, मैं लेट मी ओपन द पर्टिकुलर स्लाइड. Now you can see this, this. See, this is the converter. Clear? We want three phase to single phase output. We want three phase to single phase output. To get this, what we do? These are the phase voltage. These are the phase voltage. This is R phase. This is, let us say, this is the R phase. This one. Clear? What we want this type, this dotted line as a fundamental voltage. If you consider this your R phase, let me draw this. This is one cycle, right? This is second cycle, and this is the third cycle, and this is the fourth cycle. It means half cycle. Half cycle contain 4 input cycle. Clear? Remaining half cycle, that will be the negative cycle, that will also contain the 4 cycle. So in this case, time period of the output is equal to, T output is equal to 8 times TS. Clear? 1 जी सर। upon FO is equal to 8 times 1 upon Fs. So from here it is clear F output is Fs by 8, isn't it? Output यस सर। frequency 8 time 8 time reduce हो गई भाई. Now the question is how to get this fundamental voltage. This is the average voltage. All this cycle, let me first take the screenshot so that I can send you this, and after this I'll tell you. Just give a second to me. Just give a second to me. Control V. Okay, fine. So let me now erase all this. We want this type of fundamental voltage. You know, this is the output of this rectifier. Rectifier means positive cycle. I am saying rectifier. Rectifier means positive cycle I am considering. Right? So that it is given by 3 Vm upon 2 pi cos of alpha. If I put at this instant firing angle 90 degree. So from here 90 degree we trigger the devices, and this keeps on reducing. I keep on reducing from 90 to 0. Why? Because at the midpoint I want maximum output. Output has to be maximum. Fundamental, check the fundamental. It is having maximum voltage at the mid. So in mid means somewhere around 2 cycle. Total 4 cycle. So somewhere around 2 cycle, we have to put the firing angle 0. Then for remaining 2 cycle of the input supply, we keep on decreasing.
it is here something different, it is something different, it is something different, it is something different. Again, you just see here again it come to be 90. So from 90 to 0 and 0 to 90 you will get this type of voltage, that dark one. It will follow this curve. If you take the average of this, you will get fundamental like this. Oh my god, अरे यार ये सब क्यों कॉल करते हैं इस समय. You will get Prakash, my voice is coming, voice as well as this PPT. Yes sir, आ रहा है. Okay, okay, fine, fine. Actually कॉल आ गया था उसमें दोस्त. अरे ज्योति इस बिटिया को ले जाओ उधर. So you will get this type of fundamental voltage if you start with 90 degree, reduce it to 0 and then again 90 degree. Now to get the negative cycle of this fundamental means you want to this fundamental, which I show you in next slide. This up to this point 90 degree. After this you want negative cycle, this negative cycle. Are you getting me, Prakash? Yes sir, yes sir. You just unmute yourself, so that we हाँ sir, समझ में आ रहा है sir. can understand. This you want. Now again, you know it is 3 Vm upon 2 pi cos of alpha, means alpha must be more than the 90, then only you can have negative voltage. Negative. You will have negative. So again 90 to 180 you will increase. Why 180? Because it will give you the maximum voltage, negative direction. For example, 0 here, cos alpha can have +1 or -1. It is 1 at 0 and -1 at 180. So it will increase from 90 to 180. Then again decrease from here to here. It is for all the 3 phases, right? Means you have to generate the pulses for, let me show you the slide. You have to generate the pulses for any of the thyristor 1. If you generate for 1, then each devices will be triggered in the difference of means in the sequence of their number, and they have to trigger for 60 degree in case of full wave and 120 degree in case of half wave. This is the half wave. Alpha 90 you have to find out for this device where my cursor is at present. Let me change. Let me take this. You have to trigger 90 degree this, then it has to be shifted 120 degree for this, then it has to be shifted 120 degree for this. In that way you will get the firing pulses for positive envelope. You will get the firing pulses for positive envelope. Then for negative envelope you have to do the same thing. Clear? जी sir, जी sir. And the same procedure you have to follow for various type of configuration. No matter what type of configuration you have. For example, if you consider this where full wave converter is there, means in this case each device will be triggered in their sequence with the interval of 60 degree. You have to find out the firing angle alpha, then each devices will be triggered with the difference of 60 degree, right? As we used to do in the 3-phase AC to DC converter. Of course 3-phase waveform is not going to be asked, but of course circuit may be asked, or it may be asked if this full bridge converter, which one do you feel better, if it is a 6 pulse or if it is 18 pulse. You have to give the justification why 6 pulse, this 18 pulse is better as compared to 6 pulse. Reason is harmonic content. Clear? Yes sir. Okay. Yes sir. सर ये मैंने जब आपने पूछा था उस टाइम तो मैंने सेकंड वन वाला बोला था, बट वो ईयरफोन से आवाज गई नहीं. तो वही तो मेरे पास तुम्हारी कोई आवाज नहीं आई. एक्चुअली वो हैंड तो रेज हुआ दिखा लेकिन आवाज नहीं आई भाई. है चलिए, इसलिए से मैंने हैंड रेज कर दिया था कि सर मैं सुन रहा हूं. मतलब ठीक, वेरी गुड. बाकी कोई इस डिस्कशन से कोई डाउट हुआ हो, कुछ पूछना हो, कुछ वो हो, देखिए आप पूछेंगे तो उससे सभी का फायदा होगा. आप नहीं पूछोगे तो फिर क्या मैं यहाँ पर बोलता जाऊंगा बड़बड़.
आप उधर से सुनो ना सुनो, मैं देख तो रहा नहीं हूँ, बिकॉज वीडियो अगर ऑन कराएंगा तो वो कनेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, सजल आए आज, मुझे दिख तो नहीं पा रहे हैं यहाँ से, मतलब नए लोग में सजल ने आना शुरू करा है। सजल फायदा हो रहा है, मतलब आई मीन कुछ डाउट तो नहीं है दोस्त? नो सर, अभी तक ठीक है सर। चलिए ठीक। सो अब नेक्स्ट टॉपिक इज मैट्रिक्स कन्वर्टर, where what we get, let me first erase all this. Divyanshu, लग रहा है नहीं, शायद प्रकाश। जी सर। प्रकाश, मेरे को जब ये मीटिंग ना खत्म होने वाली हो उसके करीब 20-25 मिनट पहले याद दिला देना, तो 1-2 न्यूमेरिकल भी हम लोग कर लेंगे, थ्योरी हम फिर पढ़ते रहेंगे, ठीक है? अगर आज नहीं खत्म होगा तो हम लोग आगे कर लेंगे, या अभी न्यूमेरिकल कर लिया जाए, जैसा आप लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। चलो ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग का एक आज के लिए इस यूनिट का रह गया है, विच इज अ 3-फेज मैट्रिक्स कन्वर्टर, राइट? इसको वी विल डू इन नेक्स्ट क्लास। नाउ try to solve some numerical. Let me find this numerical for you. Let us take this. Okay, you just note down one numerical. A single phase, I am also writing on in my slide. Let me open this. Okay, and change the view. Where is camera? Camera is here. See, you a small numerical is there. Suppose you have a single phase AC voltage controller with RL type load. With RL type load. This is T1, this is T2. Whatever I am writing, is it visible? Anyone just tell? Yes, sir. Okay. So T1 and T2, and let us say the value of R is 3 ohm, and this XL is equal to 4 ohm. Clear? Now what you have to do, you have to find out first firing angle range. Means alpha की range क्या होगी? From where to where you can control the firing angle. Second, this type of question could be frame. What would be the maximum power and power factor, right? Now there are two thyristor, T1 and T2. It could be asked average and RMS thyristor currents. You have to tell the maximum values of maximum value average and RMS current. What would be the maximum value of average and RMS current? Or it could be asked maximum possible di by dt.
right? Thyristor. Maximum possible di by dt that occur in the thyristor. Next, it could be asked, conduction angle. Conduction angle for alpha equal to 0 and alpha equal to 120 degree. You can assume gate pulse duration 180 degree. You can assume gate pulse duration 180 degree. Now, Prakash, you just mute your this mic if it is not so. Right? Ekta, just unmute your mic. Ekta hai? No, I think Ekta is not here. No, Ekta is available. Ekta, just. Yes, sir. हाँ. Yes, sir. Dear, अब आप ये बताओ the first question, that is control range of firing angle. What would be the control range of firing angle? You have to tell. या कैसे निकालेंगे ये बता दो. कैसे निकालेंगे हम लोग ये बता दो आप. Just read the question. तो ताकि ये पता चले कि हम लोग जो इतना मेहनत कर रहे हैं ऊट पटांग के काम की, सब लोग जनता परेशान है, उससे कोई फायदा भी हो रहा है. नहीं तो आई विल स्टार्ट गिविंग यू नोट्स कि ये पढ़े हुए हैं नोट्स, आप पढ़ लेना अपने आप से. फायरिंग एंगल रेंज ऑफ alpha that you have to tell. What will be the firing angle range? Question clear है dear? Yes, sir. बताओ क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है. सर वी हैव 10 मिनट्स ओनली. अल्फा की रेंज कहाँ 10, so tan इनवर्स लेंगे बस. क्यों? क्योंकि 0 से नहीं होगा. आपको पता है it start from first question. It is something, if this is the voltage, this is the current. This, let me take some other pen. This is the current. So this is the minimum alpha and it is given by phi. So phi is equal to tan inverse omega L by phi R. is equal to See, those tan inverse because of constraint, I am not solving this. ओमेगा एल यू ऑलरेडी नो, आर यू ऑलरेडी नो. कल जब हम लोग मिलेंगे तो सबसे पहले हमको आप लोग आंसर इसके बताएंगे. आई एम जस्ट टेलिंग द प्रोसीजर. इट विल गिव यू द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम इज नो प्रॉब्लम. दैट इज पाई. दैट इज पाई. सो अल्फा विल लाई फ्रॉम 5 टू पाई. ठीक बात. अब फाई की वैल्यू आप जरा कल कैलकुलेट करके मेरे को बताइएगा. फाइन. नाउ the next question, maximum power and power factor. Ekta, you just mute your this mic. ये लड़की दूसरी वाली मेरी कहाँ चली गई? अंकी है? अंकिता नहीं, आज नहीं है शायद. चलिए छोड़िए. रिचा. यस सर. हाँ रिचा, आप बताओ सेकंड क्वेश्चन. बस मेरे को मेथड बता दो ताकि जल्दी से मैं लिख दूं. सॉल्व नहीं करेंगे आज हम लोग, वो आप अपना आराम से घर में आप लोग करिएगा. हम लोगों को क्या बताना है भाई? मैक्सिमम पावर एंड पावर फैक्टर. तो मैक्सिमम पावर क्या हो जाएगी? सर मैक्सिमम पावर तो नहीं पता, लेकिन पावर फैक्टर के लिए तो इनपुट पावर को आउटपुट पावर करेंगे. नहीं, देखो मैक्सिमम पावर क्या होगी? मैक्सिमम पावर तब डिलीवर होगी दोस्त जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा. ठीक बात है? आप अपना माइक नहीं करिएगा. और जो मैक्सिमम पावर है
वो वोल्टेज मैक्सिमम कब डिलीवर होगा, जब फायरिंग एंगल लोड एंगल के बराबर हो जाए, पावर फैक्टर के बराबर हो जाए, यानी अल्फा इक्वल टू 5 पे हमारा मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। क्यों भाई? ओके सर। हाँ और वो उस समय क्या होगा, उस समय पूरा का पूरा वोल्टेज आने लगेगा, पूरा का पूरा वोल्टेज, यानी अगर मैंने इसकी जैसे VM let us say, yes, let us say this voltage is 230 volt 50 hertz. Let us say this is this 230 is VM or VR, I mean RMS है या maximum है रिचा? सर ये RMS है। हाँ, very good. This is the RMS voltage, right? तो हम इससे RMS करंट निकाल लेंगे। RMS current is given by RMS voltage VRMS divided not R, it is R square plus अच्छा सर, यस सर, यस सर। हाँ भाई, ये आप सॉल्व हाँ, yes, करिएगा, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी कुछ ना कुछ। जब आई ये आ गया कैसे फिर V into I कर लेंगे सर? बस, इसमें तो फिर अगर मैक्सिमम पावर पूछ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इट इज आई स्क्वेयर आर। ये आप कल हमको करके आप लोग बताइएगा कि क्या है। ठीक बात, क्लियर है बात? यस सर, यस सर। और पावर फैक्टर सबसे अच्छा किस पे मिलेगा? इसी एंगल पे मिलेगा। इससे खराब Alpha हो ही equals नहीं to- सकता है, और उसको तुम लोग बता रहे थे सब। राइट? सर ये सर IOR निकालने से अच्छा VOR स्क्वायर अपॉन आर ना कर दें सर? VO स्क्वायर VOR स्क्वायर अपॉन आर, मतलब RMS आउटपुट वोल्टेज स्क्वायर अपॉन आर, और VOR का हमें एक्सप्रेशन पता ही है। नहीं, VOR का एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो VO डायरेक्ट दिया हुआ है 230, मैक्सिमम चाहिए ना हमें, क्यों एक्सप्रेशन में क्यों रखना चाहिए? मतलब यू विल गेट द सेम आंसर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन यहाँ तो अच्छा हाँ, अल्फा 0 रख देंगे। यस सर, यस सर, यस सर। समझ रहे हो ना आप? इसमें तो 230 दिया हुआ है, आपको उसमें अल्फा की वैल्यू, जो आपके पास आरएमएस वोल्टेज है, आप उसमें अल्फा की वैल्यू अगर रखेंगे, समझ रहे हैं, तो यू विल गेट द सेम आंसर। जी सर, जी डोंट सर। गेट कंफ्यूज। क्लियर? अब हमारे पास क्या बचा? एक चीज आ गई, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर एज रिचा सेड, एक्टिव पावर विच इज डिलीवर्ड टू लोड कितनी बाई I0 स्क्वायर आर, इनपुट गिवन VRMS इंटू I0, राइट? जो कुछ भी आ जाएगा I0 बाई R अपॉन में VRMS, VM और ये तुमको दिया हुआ है 230 here, 230 here, it is given। क्यों भाई? ये आप हमको कल बताइएगा कितनी वैल्यू आती है, that you have to check। now next, क्लियर भाई? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं? नो सर। अब रिचा आप अपना माइक जो है वो म्यूट कर लो, और अगर आप लोग ये मीटिंग प्रकाश ने जैसा बताया कि अभी खत्म होने वाली है, तो हम लोग थोड़ी सी बस एक तीसरी वाली मीटिंग भी कर लेंगे, 10 मिनट की कर लेंगे, बस ये एक सवाल तो कम से कम हो जाए। ठीक है प्रकाश? नाउ अब कौन? शक्ति यस सर। अब नेक्स्ट जवाब भैया आप दो। ये कह रहा है नेक्स्ट, मैक्सिमम थायरिस्टर करंट, दिस थर्ड एवरेज एंड आरएमएस थायरिस्टर करंट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज एंड आरएमएस थायरिस्टर करंट। तो ये बताओ मैक्सिमम कब मिलेगा? मैक्सिमम थायरिस्टर करंट कब होगी? सर बता रहे हैं। कहाँ पलट रहा है लड़के? ये तो बस आंख बंद करके जवाब देने वाला है सवाल। यस सर। मैक्सिमम कब होगी? क्योंकि ये फंडामेंटल, उस लड़के को पकड़ते हैं। ये दिव्यांशु है, देख नहीं रहे हमको यहाँ। दिव्यांशु चले गए लग रहा है। दिव्यांशु लग रहा है ऑफ हो गए। चलो वैशाली,
वैशाली अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. बताओ भाई मैक्सिमम करंट कब होगी? Yes, sir. when you will have maximum current. सर RL लोड है तो जो करंट होगी वो कांस्टेंट होगी। तुमको हम बहुत बीतेंगे पहली बात तो। अरे मतलब कि सुनो RL। वैशाली, तुमको हम बहुत मारेंगे। यस सर। ये Yes, RL लोड है, करंट कांस्टेंट होगी, ये क्या मतलब हुआ? दिव्यांशु आउट हो गए थे, अभी आ गया, ये है वो डिस्कनेक्ट हो गया होगा। पहली बात, ये कहां से कांस्टेंट करंट कैसे आएगी यार? हम लोग एसी डीसी कन्वर्टर पढ़ रहे हैं क्या? डोंट मिक्स द कॉन्सेप्ट। वी आर स्टडिंग एसी टू एसी कन्वर्टर। एसी रेगुलेटर क्या है? जो एसी से एसी में बदलेगा, वोल्टेज बस अलग अलग होगा। ये कहां से आ गया कि साहब Yes, आरएल sir. करंट है और वो कांस्टेंट होगी, दिस एंड दैट? डोंट गेट कंफ्यूज। इसकी तो भैया हम लोग सारी वेवफॉर्म वगैरह बना चुके हैं ना आरएल लोड की। आप देखिए उसमें करंट कहाँ कांस्टेंट थी? वो पॉजिटिव में भी जा रही थी, वो नेगेटिव में जा रही थी। इट वाज नो लॉन्गर कांस्टेंट है, कांस्टेंट Yes, थोड़ी sir. ना थी वो, राइट? क्यों वैशाली? Yes, sir. दिव्यांशु? हाँ सर, नहीं थे कांस्टेंट, वो वेव हाँ नीचे भी ठीक जा है रही ना, थी। देखो तुम लोग घर में भी पढ़ो, नहीं तो फिर इसमें कंफ्यूजन बाद में बहुत हो जाएगा। दिव्यांशु? यस सर। नहीं सर, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो चलो ACDC का अब जरा इनसे पूछते कंफ्यूजन हैं, था। दिव्यांशु से। ये बताइए, ये पूरा आज सर अभी तक कुछ देखा ही नहीं हूँ सर। अरे तो फिर आप कैसे गायब हो गए थे? चलिए खैर कोई बात नहीं, ये मैं सर नेटवर्क प्रॉब्लम आज चल रही है सर। चलिए ठीक है, कोई इशू नहीं। आप निशांत, म्यूट कर लो दिव्यांशु अपने आप को। निशांत, मैक्सिमम करंट कब होगी? सर मैक्सिमम करंट, अरे मैक्सिमम करंट तब होगी यार जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा। कैसी तुम लोग बातें कर रहे हो यार? तुम लोग तो मेरा गला पड़वा दोगे लग रहा है। अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, पहला क्या था? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर कब थी? जब मैक्सिमम वोल्टेज होगा। जब मैक्सिमम वोल्टेज होगा यू विल हैव मैक्सिमम करंट। मींस मैक्सिमम करंट कब होगी? जब अल्फा इज इक्वल टू लोड पावर फैक्टर एंगल। यहां से व्हाटसोएवर द वैल्यू ऑफ अल्फा यू विल गेट, उस इंस्टेंट पे अगर आप ट्रिगर करोगे तो यू विल गेट मैक्सिमम करंट। तो आई थायरिस्टर हम लोग निकाल रहे हैं, राइट? एवरेज मैक्सिमम। एवरेज मैक्सिमम क्यों? ये तब होगी जब अल्फा इज इक्वल टू 5 होगा। यू जस्ट इंटीग्रेट दिस फ्रॉम 5। 5 क्या है? 5 इज इक्वल टू, इनफैक्ट अल्फा इज इक्वल टू 5, हाँ, से लेकर के पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा। आउटपुट क्या आएगा? Vm साइन ओमेगा टी माइनस 5। और करंट है तो इसमें किसका डिवाइड हो जाएगा? Vm बाई जेड डी ओमेगा टी। एवरेज निकालना है, कहां से कहां तक निकालना है? 1/2 पाई। प्रकाश, मैं ये तुमसे पूछना चाहूंगा, जब बस 10 मिनट में ये मीटिंग खत्म होने वाली है, 1/2 पाई लोगे या पाई? प्रकाश, 1/2 पाई लोगे या पाई? सर 2 पाई लेंगे ना, पूरी साइकिल तो 2 पाई की है ना सर, उसमें किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा कि साहब एसी डीसी कन्वर्टर में हम जो है पाई लेते थे, इसमें 2 पाई क्यों? क्योंकि T1 जो है पूरी 2 पाई साइकिल में सिर्फ आधी साइकिल को चल रहा है। इट इज कंडक्टिंग ओनली फॉर हाफ साइकिल, रिमेनिंग हाफ इज कवर्ड बाय T2। तो एवरेज करंट थायरिस्टर की निकालनी है तो दैट इज एंटायर साइकिल पीरियड, दैट इज 2 पाई। 2 पाई में जितनी भी करंट उसमें आई उसका हमने एवरेज कर दिया। कहीं कोई समस्या होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों भाई? वैशाली एंड ऑल, दिव्यांशु जो बाद में आए हैं, एकता। So from here when you solve this, Yes, sir. ठीक है, what you will get? If you solve this, what you will get? You will simple get Vm by Vm by 2Z. Right? You just solve this and tell me the answer. Next time पे जब हम लोग मिलेंगे तो आप मेरे को इसकी वैल्यू बताइएगा कि ये वैल्यू कितनी आएगी, राइट? नेक्स्ट Vm by 2Z है कि pi Z?
Vm by सर pi. Vm by 2z होगा सर. You just check. सर मैक्सिमम वैल्यू निकाले ना सर. This is the maximum value. This is the maximum value. Right? It is Vm by pi z. When you integrate this ना, it will give you 2 sin omega t minus 5, 5 से लेकर के pi plus 5 का. So that will. सर वो RMS में 2z है. हाँ? RMS में 2z एक्चुअली नीचे तो गलत. क्या हो गया? सर आरएमएस वैल्यू में 2z आता है और सर एवरेज वैल्यू में सर पाई z होगा. चिल्लाओ, कान फट गया. अरे एक आदमी बोलो भाई, वो मेरे को फार्मूले देखो रटे हुए नहीं है, मैं तो फंडामेंटल से चलता हूँ. अल्फा टू पाई प्लस अल्फा करोगे तो ये वैल्यू है. तो सही है ये, मतलब एवरेज. आप देखो ना, ये cos अल्फा माइनस 5 नहीं आएगा. नहीं आएगा. अल्फा ही तो 5 है डियर. अल्फा जो है डेट इज 5. तो 5 माइनस 5 0 यानी 1 बन जाए, कॉस बनेगा ना. तो ये 0 अल्फा माइनस 5 1 बन जाएगा और 5 माइनस अल्फा, तो ये 2, इट विल गिव यू 2. दिस 2 गेट 2 कैंसिल आउट. Vm अपॉन में पाई z. हाँ यस सर आ गया. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज. और एकता बाबू रटो नहीं पिछला वाला है. अगर आप रटोगे तो यू विल गेट कंफ्यूज कि साहब उसमें ये था इसमें ये था. कुछ रटिए नहीं बस. सर वो एवरेज और आरएमएस सर अलग. एवरेज और आरएमएस, एवरेज आरएमएस का कुछ लेना देना ही नहीं है. सर कल लगाया था ना सर ये क्वेश्चन, तो सर उसमें कुछ अलग ही था सर. ये क्वेश्चन कल लगाई हो? यस सर. अरे तो फिर तब तो तुमको सारे जवाब बताने चाहिए. बताओ पहला वाला एंगल कितना आया था? सर ये कोई 53 डिग्री कुछ आएगा. अच्छा 53 डिग्री. वेरी गुड. मतलब ये जरा और लोग भी देख लें, मैं एक ये हल्का सा इसमें लिखे दे रहा हूं है. कल आप लोग सॉल्व करके इसको जरा देखिएगा. मेरे पास क्वेश्चन है, सोल्यूशन नहीं है अभी. 53 के कल ही सॉल्व करके दिखाएंगे सर. क्या आंसर आए सर? कल ही सॉल्व करके दिखाएंगे अभी. हाँ कल ही दिखाना है, आज नहीं. एक्चुअली शी इज सेइंग ना कि हम कल लगाए थे तो कुछ गड़बड़ आया था इसका. राइट. मैंने आपको, दिव्यांशु आप बीच में डिस्कनेक्ट हो गए थे, मैंने इसका आपको सोल्यूशन बता दिया. सोल्यूशन मतलब सॉल्व नहीं करा है न्यूमेरिकल वैल्यू लेके. यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ. मैंने प्रोसीजर आपको सबका बता दिया. आप अपने कैलकुलेटर से सॉल्व करके देखिएगा क्या आता है. ठीक है. और जैसा है फिर मेरे को बताइएगा आप. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज what would be the maximum possible di by dt occur across the thyristor? क्या हो सकता है मैक्सिमम di by dt? सर आरएमएस वैल्यू रहेगी. आरएमएस वैल्यू. सी मैक्सिमम करंट कितनी बह सकती है डिवाइस के अक्रॉस, मैक्सिमम करंट कितनी बह सकती है. I0 की एक्सप्रेशन हम लोग निकाल सकते हैं. I0 आ गया. यू जस्ट डिफरेंशिएट di0 by dt. Vm by mod that sin of omega t minus 5 करके आ जाएगा. हम लोगों का I0 क्या है? स्टेडी स्टेट वैल्यू इज Vm by z sin of omega t minus 5. यही तो है. Vm by z sin of omega t minus 5. You just differentiate this. You will get omega Vm z cos of omega t minus 5. तो 0 से it can go up to this value, that is omega Vm by z cos of omega t minus 5. So you solve this. If this is the maximum value of the current. Which number is this? 4. Right? I0 is Vm by z, that is the steady state component. Vm by z sin of omega t minus 5. You have to differentiate this di0 by dt. It will give you omega
Vm by Z cos of omega t minus phi. Right? This will be the maximum Sir, value. Maximum value हमें पता करनी है. Maximum क्या है इसकी value? 1 है. So it is omega, you can say di0 by dt. This is maximum is omega Vm by Z. You just solve this. What is the value? It will get clear. Now, the last question. Conduction angle for alpha equal to 0 and for alpha equal to 120. What would be the conduction angle for these two? Alpha equal to 0 and for alpha equal to 120. What will be the value of this conduction angle? Means during which current is not 0. During which current is not 0. That is the conduction angle. Clear? That will give you the. Sir. Yes. दिखाई नहीं दे रहा सर, थोड़ा कॉपी इधर कीजिए लेफ्ट में. Up, is it okay? Is it okay? Yes sir. Next for this. Alpha equal to 0, gamma equal to what? Alpha equal to 120, gamma equal to what? That you have to find out. When we studied AC-DC converter, you remember? When we studied AC-DC converter, we find out the value of current I0. Instantaneous value. I am talking about the instantaneous value IT. It was come out to be Vm by Z. Vm by Z sine of. Directly I am writing omega t minus phi minus sine of alpha minus phi e to the power r by L alpha by omega minus t. This is the value what we get in case of AC-DC converter. This expression is valid for this as well, because whether it is a positive cycle or negative cycle, your current expression is like this. Your current expression is like this.